So apparently India has its own Justin Bieber, and yes, the Bieber fever is real. Suraj Chavan, widely known as Indian Justin Bieber, is in the spotlight after being voted India's most handsome man. कहाँ हुआ ये वोट, कब हुआ, कौन है ये, क्या है ये, तुम लोग जानते हो क्या इसको? या मैं किसी पत्थर के नीचे रहता हूँ? हाय गाइस, वेस्टर्न दुनिया को फिर से रेसिज्म के कीड़े ने बहुत बुरा काटा है, और इस बार सीधे बुद्धि पे काटा है लगता है। Justin Bieber, how does it feel to be the most? क्या बोल रहा है भाई? ओ अच्छा, सबटाइटल दिया है। How does it feel to be the most attractive person in the world? I am the India of Justin Bieber. Justin Bieber is not Justin Bieber. I am Justin Bieber. People call me the India of Justin Bieber. अरे हंसना कब था बताया नहीं। Ain was named the most handsome man in India, a country that has a population of over 1.4 billion people. He's gone viral on social media, winning legions of fans, with Indian people calling him Justin Bieber due to his hairstyle. Who are these people? अच्छा एक सेकंड देना, मैं अपना दिमाग टकलो डैंक समाज को बेच के आया। तो दोस्तों तुमको पता ही होगा कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है इंडिया को गाली बकना। कंस्ट्रक्टिवली नहीं, बस ऐसे ही गाली बकना। सिविक सेंस ठीक नहीं, अनहाइजेनिक है लोग, ह्यूमरलेस है, जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड है, धरती पे बोझ है, यूएस ने ईरान को उड़ा दिया, इसमें भी इंडिया की गलती है। चलो ये तो हो गया डायरेक्ट नफरत दिखाना। एक और सॉफ्ट तरीका होता है ये नफरत को दिखाने का, इंडिया के सॉफ्ट पावर को टारगेट करके। यहाँ का कल्चर खराब, खाना खराब, लोग खराब, मतलब इंडिया सुनते ही तुम्हारे मन में एक नेगेटिव इमेज बननी चाहिए कि यहाँ तो बस अनफनी अगली लोग रहते हैं एक अगली सी जगह पे। इन लोगों ने सूरज छवन को देखा और एक फेक न्यूज फैला दी कि ये तो इंडिया का सबसे हैंडसम इंसान है। The most handsome Indian in the world. मतलब तुमको इनके कमेंट्स देख के समझ में आ जाएगा कि ये करना क्या चाहते हैं। इनका कीड़ा इतना बड़ा है कि डेली मेल जैसा पब्लिकेशन भी इस फेक न्यूज को इतना सीरियसली दिखा रहा है। He has over 2.9 million followers and has just been crowned the most handsome man in India. But who is the Indian Justin Bieber? Real here. He doesn't look like Justin Bieber, and he never said that he did. The title was given to him by the internet, and as he dripped into Western socials, confusion amassed, and eventually the name just kind of. Exactly. ये वेस्टर्न मीडिया में ही इतना पॉपुलर क्यों है? इंडिया का होके इसको इंडिया में ही कोई नहीं जानता। इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा, मतलब फेक या एग्जैजरेटेड इन्फॉर्मेशन को अपने एजेंडा के लिए पुश करना, जिससे अल्टीमेटली पब्लिक परसेप्शन चेंज हो। इस केस में ये पब्लिक परसेप्शन इंडिया को लेके है, और ये एक बड़े एजेंडा का पार्ट है। इसीलिए तुमको आजकल एंटी इंडिया कंटेंट जरूरत से ज्यादा दिखता है इंटरनेट पे। अब ये करने वाले इंडिया के हेटर्स वेस्ट से भी हो सकते हैं या पड़ोसी देश से भी हो सकते हैं। And the guy is really a celebrity over there, man. You understand? But I think their way of seeing beauty over there is different. And man, look at their faces. They're all the same, man. They're all the same. Well, if you think about it, man, just the fact that your whole family follows you on Instagram, if you're Indian, of course, you'll already have over 1 million followers, man. It's the most populous country in the world. Oh, so here's the thing. If you think you're an ugly person and don't fit in here in the Brazilian world, if you think you can't get a girlfriend because you're too ugly, go to India, man. No, they don't care about looks. हाँ बिल्कुल, मेरे हार्मोन्स पे मैं कंट्रोल कैसे करूँ इस उबले हुए आलू को देख के। See an Indian Christmas now. It's almost here, right? By the way, a Merry Christmas in advance to everyone. It looks like a video made by Ia. Man, I hope it's not a cookie made by their feet. For God's sake, right? Several different shapes. पहले सूरज छवन से ये अचानक कुकीज पे आ गया। Have you ever seen what the traffic is like in India, right? They still have trains there. फिर ट्रैफिक पे आ गया। Can you imagine a train with about 10,000 people, even on the roof, sitting by the window? And to give you an idea of that, man, check out what they're doing. I don't know if it's an Indian trend where they do somersaults in front of everyone. फिर somersaults पे आ गया। मन में जितनी हेट्रेड और नेगेटिविटी है इंडिया को लेके सब एक ही वीडियो में निकाल देगा ये। मतलब तुमको समझ नहीं आ रहा कि ये करना क्या चाहते हैं। इनको बस कैसे भी इनका नैरेटिव चलाना है इंडिया के अगेंस्ट। नहीं तो ऐसी कौन सी खुजली होगी एक 44.8 मिलियन वाले पेज को कि एक फेक न्यूज को इतनी बेशर्मी से दिखा रहे हैं। इनसे तुम क्या अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो? हर जगह सेम वीडियोस चिपकाए इन लोगों ने, सेम गाना लगा रखा है, कुछ भी कर रहे हैं। कहने का मतलब है मैं 200% श्योर हूं कि ये पेड नेगेटिव पीआर है। मतलब देख लो इनके लिए कितना जरूरी है ये न्यूज। सब काम धंधा छोड़ के पैनल डिस्कशन चल रहा है सूरज छवन की खूबसूरती पे। Justin Bieber, cet homme est le sosie de Justin Bieber. Alors, je sais, c'est pas évident comme ça, mais je vous jure que dans son pays, on l'appelle le Justin Bieber indien. Alors, moi, je pense le sosie d'Angelina Jolie. C'est flagrant d'ailleurs. और तुम यहाँ इंडियन मीडिया को गाली देते रहते हो,
और अगर ये वोटिंग रियल में भी होती तो इसमें इतना बड़ा न्यूज होने वाली कौन सी बात है। ये 2015 में शायद लोगों को फनी लगता। इनको चाहिए क्या, इनको इस तरह के कमेंट्स चाहिए इनके पोस्ट के नीचे, जिससे इनका प्रोपेगेंडा चलता रहे और इस ऑनलाइन हेटरेट को फिर ये रियल लाइफ में लेके जाते हैं। तुम्हारे मन में एक सर्टेन कम्युनिटी को लेके स्ट्रॉन्ग रेशियल प्रेजुडिस है पहले से, तो तुम चाह के भी उससे नॉर्मली खुल के बात नहीं कर पाओगे और कभी ना कभी वो सामने आ ही जाएगा। और भारत के हेटर्स ये करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन उनको देख के हमारे यहाँ के बाल बुद्धियों को क्या हो जाता है, वो क्यों इनकी चटाई करने में लग जाते हैं। ब्रो, आई एम एन इंडियन बट आई गॉट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। पजीत स्कैमर, सुपर पावर सारकारी। नाउ प्लीज गिव मी माय वाइट वैलिडेशन सर्टिफिकेट। ये इंडिया के जस्टिन बीबर है, जिन्हें भारत का सबसे सुंदर व्यक्ति कहा जाता है। ये वही लोग हैं जो मिस्टर अनबायस्ड जर्नलिस्ट के वीडियोस के नीचे चाटते हुए दिख जाएंगे तुमको। एज एन इंडियन दिस इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू सर, प्लीज डोंट कैंसल माई H1B। और ये लोग तुम्हारी एक्सेंट पुलिसिंग भी करते हुए दिख जाएंगे। तुम तरीके से 2 शब्द बोल दो अंग्रेजी के कॉस्मोपॉलिटन एक्सेंट में, तुमको बोलेंगे ए व्हाई आर यू फेकिंग योर एक्सेंट, वी डोंट टॉक लाइक दैट। मतलब तुम क्या कह रहे हो इस पे ध्यान नहीं होता है इनका, तुम कैसे कहते हो ये ज्यादा जरूरी होता है। ये लोग नाम के बस इंडियन होते हैं, इनकी रीजनल आइडेंटिटी इनके नेशनल आइडेंटिटी से ऊपर होती है। कमेंट्स में जो नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी वालों को गाली बकते हैं ना, ये वही लोग हैं। जो भाषा और धर्म को लेके पॉलिटिक्स करते हैं, ये वही लोग हैं। इनको रगड़ो पहले, फिर जाके रेसिज्म पे बात करना। कुछ लोग बोलते हैं ये तो बस एक हार्मलेस मीम है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अरे मिसलीडिंग है ये गोबर बुद्धि। इसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस तुमको दिखेंगे अभी धीरे धीरे। ये क्यों कर रहे हैं, इसके काफी रीजंस हो सकते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, काफी पोटेंशियल है यहाँ पे, तो इसको गिराने वाले तो होंगे ही। अब देखो सीधी सी बात है, तुम्हारी नेशनैलिटी का कोई मजाक बनाए तुमको चलेगा, मुझे नहीं चलेगा। क्रिटिसाइज मैं खुद करता हूँ जहाँ जरूरत होती है, लेकिन क्रिटिसिज्म और ब्लाइंड हेट के बीच का डिफरेंस समझो दोस्तों। 1.5 बिलियन लोगों का तुम कैजुअली ऐसे मजाक बनाओगे और हम जाने देंगे, मतलब हलवा है क्या। अंधा लेफ्टिस्ट और अंधा नेशनलिस्ट दोनों ही खतरनाक होते हैं, लेकिन जो जैसा है उसको वैसा तो दिखाओ कम से कम। अपने टॉपिक्स और स्टोरीज भेजते रहो इंस्टा या ईमेल पे, सब पे आएंगे धीरे धीरे। मिलते हैं अगले वीडियो में।